Good evening. Yesterday we have completed lesson number 8.1. Now we are going to start with lesson number 8.2. But before that we have to frame some sentences for puratah, prushtataha, etc. Okay. So now so as we have written some meanings yesterday of puratah, prushtataha, adhah, etc. So now let's frame some sentences. Here we have one example given. पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तंभः अस्ति. पाठशाला के पुरतः मतलब in front of the school there is ध्वजस्तंभः. So now whenever you have to use all these words puratah, prushtataha, indicating direction indicate करने वाले ये words जब भी आप use करोगे तब हमें षष्ठी विभक्ति यूज करनी है. Okay, so we have seen in this lesson we have seen that we have to add seer for masculine and neuter gender, and we have to add yaha for feminine gender. So similarly we have to use these endings while framing the sentence of puratah, prushtataha, upari, vamatah, adah, dakshinatah, etc. So one sentence is given पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तंभः अस्ति. Now you have to tell me other sentences for description of this picture. मतलब पाठशाला के पीछे क्या है, behind the school, then what is there at right hand side and what is there at left hand side, then what is there below. You have to tell me everything using yaha or seer. But here in case of pathashala, this is a feminine word, so everywhere we will use yaha. So पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तंभ अस्ति, पाठशालायाः पृष्ठतः, पाठशालायाः वामतः, पाठशालायाः अधः. In this manner you have to frame sentences. Okay, so yes, who will tell me sentence for पृष्ठतः, behind? Quickly raise your hand. You can also drop your answer in chat box. Quickly raise your hand for पृष्ठतः. पाठशालायाः पृष्ठतः something something अस्ति. What is that dash something? माउंटेन के लिए हमारे पास वर्ड बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, जस्ट लाइक मराठी, पर्वतः. Yes, quickly name the sentence. Yes, Deepika. Yes, ma'am. Hello. Yes, hello Deepika. Yes, ma'am. क्या Can होगा I say the आंसर? answer? Yes. Yes. पाठशालास में पुरुषः पर्वतः. पाठशालायाः. पाठशालायाः. Yes. पाठशालायाः पुरुषः पर्वतः. हाँ, पृष्ठतः. पृष्ठः.
पृष्ठतः, यस, पृष्ठतः। पृष्ठतः। एक बार अभी फिर पृष्ठतः, से बताओ पूरा सेंटेंस। पाठशालायाः पृष्ठतः पर्वतः हाँ, पर्वतः अस्ति। अस्ति मीन्स अस्ति। है। यस, वेरी गुड अस्ति। दीपिका, वेल ट्राई। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट पृष्ठतः हो गया। सो पाठशालायाः पृष्ठतः पर्वतः अस्ति। पाठशालायाः पुरतः ध्वजस्तम्भः अस्ति, पृष्ठतः पर्वतः अस्ति। नाउ पाठशालायाः उपरि किम् अस्ति? पाठशालायाः उपरि किम् अस्ति? क्लाउड्स के लिए वर्ड है मेघः। मेघः। सो अगर आपको एक क्लाउड बोलना है, यू कैन से मेघः, और मेनी क्लाउड्स मेघाः। मेघाः। Yes, Gargi. Quickly tell me sentence. Yes, Shreya. Hello, ma'am. Yes, Shreya. Yes. Sentence for upari. Yes, पाठशालायाः उपरि मेघाः असति. Abhyakti changes to santi. Okay. Many meghas are there, na? Hence santi. Yes. Okay, Shreya. The thing will be like this. Santi. Asti changes to santi because many clouds are there. Santi. Very good, Shreya. Santi. Okay. Yes. Okay. Yes, Devin. Hello. Please give me next answer. Hello, Devin. Give me next Yes. answer for dakshinatah. गार्डन को वर्ड पता है ना? उद्यानम. पाठशाला दक्षिणतः. यस. गार्डन के लिए उद्यानम वर्ड है. पाठशाला दक्षिणः उद्यानम अस्ति. हाँ, मेरे पीछे एक बार बोलो. पाठशाला याहा. पाठशालायाः दक्षिणतः दक्षिणतः उद्यानम अस्ति. उद्यानम. ओके, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. पाठशालायाः वामतः. फ्री के लिए तो वर्ड पता है हमें. वेरी सिंपल वर्ड. यस दीपिका. यस मैम. वामतः. ओके, पाठशालायाः वामतः वृक्षः अस्ति. वाओ, परफेक्ट आंसर. Thank you, नो ma'am. मिस्टेक एट ऑल. ओके, चलो लास्ट. अभी लास्ट इज अधः, बिलो, एंड जमीन है. पाठशाला के नीचे ऑफकोर्स क्या है? जमीन है. देन व्हाट इज अ वर्ड फॉर जमीन और सॉइल और अर्थ? द वर्ड इज भूमि ही. वर्ड इज भूमि ही. Yes, so will tell me the answer for adha. Yes, Deepika, once again. यस मैम. पाठशालायाः अधः भूमिः भूमि भूमि ही अस्ति. भूमि अस्ति. Very good, very good. Okay, Thank you, so ma'am. quickly, yes. So मैम मैम. हेलो yes, मैम. Deepika. Yes, मैम, Deepika. पाठशाला अतः भूमि इज देयर और भूमि है? भूमि ही बेटा. भूमि ही. ओके हाँ, मैम. मतलब भूमि. हाँ, I will कैन tell यू you. राइट द स्पेलिंग? See, this is bhumi, short ma, and then visarga. So visarga will pronounce like bhu he. So full word is bhumi he. Because of visarga, I am saying that he. Are you getting me? यस मैम. Okay. Write down थैंक the यू मैम. spelling bhumi hi. Okay, everyone. So you have to write down all the sentences in your notebook after the lecture. Now we'll move ahead to the next lesson, that is 8.2 कुत्र अस्ति. So यहाँ पे again new question आ गया. पहले हमने यहाँ पे संबंधवाचक कहा यानी कि रिलेशन देखे थे.
अभी in 8.2 we are seeing putra asti. Putra means doggy. No, in Sanskrit putra means where. Okay, so we have to find out the answer as a place. एक चीज कहाँ पे है या किसमें है, किसके ऊपर है, इन, ऑन, एट, अमंग, ये जो prepositions होते हैं इसके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने इन दिस लेसन एंड आंसर्स will be in Sanskrit. So you will be framing a sentences in Sanskrit for in, on, at now. So देखते हैं कि कैसे हमें फॉर्म करना है संस्कृत में कुत्र अस्ति का आंसर. पहला क्वेश्चन है फलम कुत्र अस्ति, मीन्स फल किधर है, वेयर इज द फ्रूट. तो अभी फल हमें किधर दिख रहा है, पेड़ के ऊपर. सो ऑन द ट्री. सो ऑन के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्री जो वर्ड है, ट्री के लिए वर्ड होता है वृक्ष. तो बस ऑन द ट्री है इसीलिए उसके ऊपर एक मात्रा देने वाले. ओके, तो हमारा आंसर हो गया फलम वृक्ष अस्ति. देन कूपी कुत्र अस्ति. कूपी मीन्स वाटर बॉटल. कहाँ पे है, इनसाइड द बैग, इन द बैग. सो अभी इन के लिए भी हमें क्या करना है, हमें बैग के लिए वर्ड पता है. नाउ यू हैव टू यूज योर वोकैबुलरी. ओके, बैग के लिए वर्ड है स्यूत. अभी इन स्यूत है इसीलिए इसके ऊपर एक मात्रा देंगे. मतलब whenever you have masculine words like devah and you have to frame the sentence with the meaning in, on, at and among for a masculine word, then you have to just put a matra above it. So devah will become deve. Likewise you can observe here वृक्षे, स्यूते, गगने, जले. अभी यहाँ पे इसका मीनिंग देखते हैं. चंद्रः कुत्र, वेयर इज मून. मून इज इन द स्काई. सो इन स्काई, स्काई के लिए वर्ड है गगन और आकाश. बोथ द वर्ड्स आर देयर इन संस्कृत. सो यू कैन फ्रेम आंसर लाइक चंद्रः गगने अस्ति और चंद्रः आकाशे अस्ति. देन मीनाः कुत्र तरन्ति. कुत्र मीन्स वेयर. अगेन पानी के अंदर है. मीनाः मीन्स फिश. फिश आर देयर इनसाइड द वाटर. इनसाइड द वाटर के लिए मैंने फिर से क्या किया, जल के ऊपर एक मात्रा दे दिया. तो मेरा मीनिंग अभी कंप्लीट हो गया इनसाइड द वाटर. अगर सिर्फ जल लिखा तो पानी. मीनाहा पानी तरंती. फिश पानी है या फिश पानी तैरते हैं, इसको कोई मीनिंग नहीं है. बट फिश पानी में तैरते हैं इसको मीनिंग है. सो पानी में, इन, ऑन, एट, अमंग के लिए वी हैव टू पुट जस्ट अ मात्रा फॉर मैस्कुलाइन एंड न्यूटर जेंडर बोथ. Now we'll move ahead. Here we have some words and you have to tell me the forms of it. Like if the word is vargah varge, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्गः वर्गे, then हस्तः का क्या हो जाएगा. जैसे वर्गः वर्गे, वृक्षः वृक्षे, स्यूतः स्यूते, then जलम जले, गगनम गगने. वैसे अभी ये सब वर्ड्स जो है इसका आपको सेम फॉर्म बना के बताना है. इवन फॉर न्यूटर जेंडर यहाँ पे आप देख सकते हो पात्रम द्वारम, उसमें भी क्या करना है, रिमूव दैट म एंड ऐड मात्रा. पात्रम पात्रे, द्वारम द्वारे, मुखम मुखे, गृहम गृहे, एक्सेट्रा. ओके, यस. सो हु विल टेल मी द फर्स्ट लाइन. ये पूरा लाइन कौन बोल के दिखाएगा, लाइक हस्ते, हस्तः हस्ते, फलकः फलके, एक्सेट्रा. यस अथर्व. Yes, ma'am, I am audible. Yes, you are audible. Ma'am, can I start? Yes. हस्त हस्ते, फलकः फलके, मार्गः मार्गे, पर्वतः पर्वते, आसन्दः आसन्दे, घटः घटे, कर्णः कर्णे, विद्यालयः विद्यालये. Very good, perfect. नाइस अथर्व. तो अथर्व ने अभी हमें जो जो फॉर्म्स बताए, हस्ते, फलके, मार्गे, पर्वते, आसंदे, घटे, कर्णे एंड विद्यालये, इनका मीनिंग क्या होता है. इन, ऑन, एट. सो इन हैंड, ऑन हैंड, एट हैंड, इन बोर्ड, ऑन बोर्ड, एट बोर्ड, एक्सेट्रा. जो भी एप्रोप्रिएट है वो यूज करना है. ऐसे नहीं कि सब, बिकॉज हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एट हैंड, ये गलत इंग्लिश हो गया. इन हैंड भी इतना ठीक नहीं लगता. ऑन द हैंड, ओके, दैट इज ओके. सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश वी हैव टू यूज the words, but in Sanskrit for all three meanings we have only one ending, that is matra. Now we'll move ahead.
to the next part, that is न्यूटर जेंडर मैस्कुलाइन. इसमें दिया हुआ है गृहम गृहे. रिमूव म एड मात्रा, रिमूव म एड मात्रा. So who will tell me answer for all these words? Yes, Devin. Yes, ma'am. Yes. पात्रं Tell all the पात्रे द्वारं द्वारे मुखं मुखे पुष्पं पुष्पे फलं फले शाकं शाके पुस्तकं पुस्तके फनकं फनके दुग्धं दुग्धे उद्यानम् उद्याने. Very good. दुग्ध. ओके, दुग्धम दुग्धे. दुग्ध मीन्स मिल्क. दूध बोलते हैं ना हम लोग हिंदी मराठी में, वैसे ही संस्कृत में दुग्धम. वेरी गुड देवेन, यू हैव ट्राइड वेल. All the answers were correct. Now we'll move ahead to the feminine part. Again feminine में देखते हैं मौक्तिकानि कुत्र. मौक्तिकानि means pearls, मोती. कुत्र means कहाँ पे है? In that necklace. So necklace के लिए simple word है माला. So girls के लिए हमें जब in on at यानी कि feminine gender के लिए जब in on at ऐसा meaning या prepositions add करने हैं in Sanskrit, then we have to add yam at the end. Okay, yam, malayam, petikayam, balikayam, sarikayam, chatakayam, etc. And for इकारंत words जैसे गौरी, अंजलि, ऐसे जो गर्ल्स के नाम है उसके लिए आप देख सकते हो नद्याम एंड द्रोण्याम. उसमें भी याम ही ऐड करना है, बट बाय रिमूविंग दैट ई. यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा. सी, पहला लिखा माला एंड देन जस्ट याम ऐड कर दिया. पहले था माला, माला मीन्स ओनली नेकलेस एंड मालायाम इन द नेकलेस. अभी अगर मेरे पास वर्ड है घटी, तो पहले वर्ड था सिर्फ घटी मतलब वॉच. अभी इन द वॉच ऐसे अगर मुझे बोलना है, देन आई विल ऐड याम टू इट बाय रिमूविंग ईकार. आप देख सकते हो मैंने वो जो ईकार था, वेलांटी थी, वो डिलीट कर दी एंड घटी का बन गया घट्याम. नदी का बन जाता है नद्याम, कूपी का बन जाता है कुप्याम, लेखनी का बन जाता है लेखन्याम, एक्सेट्रा. ओके, नाउ विल सॉल्व सम एक्सरसाइज. तो पहले ये समझ के लेते हैं. मौक्तिकानि कुत्र, मौक्तिकानि मालायाम. लेखनी कुत्र, लेखनी मीन्स पेन. पेन कहाँ पे है? ऑफकोर्स पेटिका में, हमारे बॉक्स में होने वाला है, इसीलिए लेखनी पेटिकायाम, इनसाइड द बॉक्स. नौका कुत्र वहती, वहती मीन्स फ्लोइंग. ओके, तो बोट कहाँ पे है? इन द रिवर, इसीलिए नौका नद्याम वहती. नद्याम, नदी बिकम्स नद्याम, याम इज एडेड. तो ये जो स्पेलिंग है ये भी आप लिख सकते हो, और अगर आपको डिफिकल्टी है वो लिखने में तो आप ऐसा भी स्पेलिंग लिख सकते हो, नद्याम. बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट. ओके, now we'll move on. Jalam kutra asti, jalam dronyam asti. Droni means this bucket and jala is यानी कि water is inside the bucket. So in bucket के लिए हम use कर रहे हैं ये yam. Not only for in, on, at and among. Now we'll move ahead. We have words shatika, shatika, yam. So who will tell answer for all these words? Shatika, shatika, yam. Petika, petika, yam. Mala, mala, yam. In this manner you have to tell. Yes, Vedika. Yes, ma'am. And then next on Hitesh. Yes, Vedika, start. Yeah. Mapika, mapikayam. Nasika, nasikayam. Nalika, nalikayam. Patshala, patshalayam. Margika, margikayam. Ma'am, what is that? Manjusha. Manjusha. Okay. Manjusha, manjushayam. Sharkara, sharkarayam. Vatika, vatikayam. Dola, dolayam. Very good. Perfect answers. Thank you, ma'am. Okay, chalo. Next, we'll give chance to Hitesh. Hitesh, just see here. Nadi becomes nadyam. Droni becomes dronyam. So in this manner, you have to tell me all answers for ikaranta feminine words. Yes, Hitesh,
Start. कर्तरि कर्तर्यां कर्तर्यां मार्जनी मार्जन्यां लेखनी लेखन्यां पुनः पूर्णी पुनः पूर्ण्यां घटी घट्यां कुपी कुप्यां. Very good. And pronunciations are also perfect. Thank you, ma'am. So as Hitesh said, this word punah purani is little bit difficult, but he pronounced very well. And when we add yam to it, the word will look like this: punah, two dots, then puranyam. Okay, punah puranyam. Little bit difficult word. Refill. Punah purani is refill. Punah puranyam, in the refill. ओके तो अभी आप सीख गए हो इन ऑन एट कैसे बताना है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द आंसर फॉर आवर भाषा अभ्यास. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थपूर्णानि वाक्यानि रचयत. अर्थपूर्णानि, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मार्क दिस वर्ड. मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, मीनिंग होना चाहिए. इन है, एट है, उसमें याम ऐड करना है कि मात्रा ऐड करना है, वो सब आपको डिसाइड करना है बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग फर्स्ट. ओके तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, अगेन वी हैव 3 कॉलम्स. तीनों कॉलम्स में से एक एक वर्ड को चॉइस करना है एंड हमारा सेंटेंस जो है वो 3 वर्ड्स का रहेगा. आई विल ट्राई फर्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू ऑब्जर्व इट. फर्स्ट वर्ड इज पर्वत, सेकंड वर्ड इज मंदिरम एंड अस्ति एंड नास्ति में से मैं कुछ भी चॉइस कर सकती हूँ एज पर माई कन्वीनियंस. जो भी मुझे इमेजिन हो रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, वो मैं इमेजिन करूंगी. मतलब मुझे ऐसा कहना है कि पर्वत पे मंदिर है या नहीं है. मैंने जहाँ पे देखा वहां पे पर्वत पे मंदिर है, तो आई विल यूज अस्ति. अगर नहीं है, आपने देखा वहां पे, तो आप नास्ति लिख देना. ओके तो अभी मुझे क्या बोलना है कि पर्वत पे मंदिर है. द टेम्पल इज ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन. एंड ये जो वर्ड है पर्वत, ये कैसा वर्ड है? मैस्कुलाइन वर्ड है, बिकॉज दिख रहा है अ में एंड हो रहा है. ओके तो अभी पर्वत मैस्कुलाइन वर्ड्स में मैंने देखा था यहाँ पे वृक्षे, स्यूते, गगने, जले एक्सेट्रा के जैसे. मुझे भी क्या करना है, एक मात्रा ऐड करना है. सो आई विल ऐड मात्रा टू इट. सो माय आंसर विल बी लाइक दिस: पर्वते. नेक्स्ट वर्ड रिमेन्स एज इट इज, मंदिरम. एंड लास्ट वर्ड ऑल्सो रिमेन्स एज इट इज, दैट इज अस्ति. ओके just a minute. हाँ, अस्ति. तो पर्वते मंदिरम अस्ति. Now in this manner you have to tell me one sentence, one answer. First we'll give chance to Hitesh again. Yes, Hitesh. Hello, ma'am. Yes. Dugdha sharkara asti or nasti? दुग्धे शर्करा अस्ति. Very good. And what is the meaning of it? हितेश, मीनिंग क्या हो गया दुग्धे शर्करा अस्ति का? There is sugar in the milk. Very good. Thank you. Yes, Shreya, next. लेखन्यामसि अस्ति. Okay. लेखन्याम मसी अस्ति. And meaning? Yes, Shreya, meaning? Ma'am, Lekni is pen, but I don't know what is masi. Very good. Masi is ink. So now you can frame the sentence. Okay. So ink is there inside the pen. Now next है, next we'll give chance to Atharva. Yes, Atharva. Vatika dola. Ma'am, what is the meaning for that? Vatika and Dola. हाँ, Vatika is उद्यान, again garden, and dola means swing. गार्डन में स्विंग होते हैं ना, उसको डोला कहते हैं. वाटिकायाम डोला अस्ति. वेरी गुड. वाटिकायाम डोला अस्ति, करेक्ट.
देन नेक्स्ट लास्ट, बहुत ही सिंपल, पुस्तकम एंड गीतम का मीनिंग तो सबको पता है. यस वेदिका, प्लीज ट्राई. यस दीपिका. Yes, ma'am. Ma'am, answer is asti. हाँ, बट पूरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? पुस्तकम गीतम. पुस्तकम, you have to either use matra or yam. If the word is masculine, then put matra. If the word is feminine, put yam. पुस्तक के बाद क्या ऐड करोगे आप, वो पहले डिसाइड करो. इन बुक ऐसे बोलना है हमें. Okay, पुस्तकम गीते अस्ति. नहीं, गीत के ऊपर नहीं बेटा मात्रा देना है, पुस्तक के ऊपर मात्रा देना है. पुस्तक के गीतम अस्ति. ओके, पुस्तके गीतम अस्ति. हाँ, सॉन्ग में पुस्तक नहीं है ना, पुस्तक में सॉन्ग है, राइट? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड. ओके मैम. यस दीपिका. मैम, लेखनी मशी मैम, आंसर इज अस्ति नो और नस्ति. या आप कैसे भी बोल सकते हो. अगर आपकी रिफिल खत्म हो गई, यू कैन से नास्ति. लेखन्याम मसी नास्ति. अगर है रिफिल तो आप बोल सकते हो लेखन्याम मसी अस्ति. ओके ओके, एंड एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. ये जो आंसर्स है, इट इज एज पर योर कन्वीनियंस. अभी देखो, समन सेड कि आंसर इज दुग्धे शर्करा अस्ति. अभी कोई कोई डाइट कॉन्शियस है तो वो शुगर यूज नहीं करता है, तो दुग्धे शर्करा नास्ति. इट इज अप टू यू. बोथ द अस्ति एंड नास्ति यू कैन यूज एवरीवेयर फॉर ईच एंड एवरी सेंटेंस. पर्वते मंदिरम नास्ति नहीं है. सब पर्वत किधर मंदिर होते हैं? नहीं होते. कुछ कुछ पर्वत के ऊपर नहीं है. देन पुस्तके गीतम नास्ति, मैं बोल सकती हूँ पुस्तक में गीत नहीं है, स्टोरी है, इसीलिए गीतम नास्ति. तो अस्ति एंड नास्ति इज एप्लीकेबल टू ऑल द सेंटेंसेस. ओके, चलो, it is just an activity. Then we'll move ahead to the next activity. Now it is very simple activity because only one ingredient is given, which is jalam. पानी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग कंटेनर्स में हम स्टोर करते हैं. तो वो कंटेनर्स को हमें इन ऑन एट, यानी कि इन नॉट ऑन, इन का मीनिंग करते हुए लिखना है. सो यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज अगेन कि यू विल ऐड मात्रा और याम. तो जैसे कि आप देख सकते हो, कुपी, कुपी मतलब बॉटल में भी हम पानी रख सकते हैं. कुपी इज फेमिनाइन, सो डिसाइड डू यू वांट टू ऐड मात्रा और याम. कलश इज मैस्कुलाइन. कलश जो होता है उसमें भी हम पानी रख सकते हैं. देन नदी, रिवर में तो पानी होता ही है, अगेन इट इज फेमिनाइन वर्ड, सो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू विल ऐड मात्रा और याम. देन समुद्र इज मैस्कुलाइन वर्ड. समंदर में भी पानी होता है. गंगा इज अगेन नेम ऑफ रिवर, सो रिवर में ऑफ कोर्स पानी होता है, इट इज अगेन वन सोर्स ऑफ वाटर. एंड लास्ट सरोवरम, यानी कि तालाब, लेक. सो सरोवर में भी पानी होता है. सरोवर इज न्यूटर जेंडर, सो यू हैव टू रिमूव दिस म एंड देन डिसाइड वेदर यू विल ऐड मात्रा और याम. ओके, तो जिनको भी याद नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. फॉर मैस्कुलाइन एंड न्यूटर जेंडर ऑलवेज ऐड मात्रा, एंड फॉर फेमिनाइन ऑलवेज ऐड याम at the end. Okay, if you want meaning in, on, at. तो ये जो लेसन है इसके साइड में यहाँ पे लिख के रखो, मैस्कुलाइन एंड न्यूटर के लिए क्या बताया है एंड फेमिनाइन के लिए क्या बताया है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेसन वी आर सीइंग इन फैक्ट इन, ऑन, एट. तो ये सब जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है वो वहां पे ही आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखो, देन रिवाइज करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. यस, सो हु विल टेल फर्स्ट आंसर फॉर कूपी. कूपी से हम स्टार्ट करेंगे. यस हितेश. यस मैम. कुप्याम जलम अस्ति. वेरी गुड. कुप्याम जलम अस्ति, करेक्ट. चलो नेक्स्ट. आप उल्टा भी बोल सकते हो, जलम कुप्याम अस्ति, कुप्याम जलम अस्ति. पानी बॉटल में है, बॉटल में पानी है, एवरीथिंग इज करेक्ट. देन नेक्स्ट, कलशः. who will frame a sentence for कलशः? Yes, Shreya. कलशे जलम अस्ति.
वेरी गुड. नेक्स्ट नदी. यस अथर्व. नद्यां जलम अस्ति. वेरी गुड. नद्याम. करेक्ट. यस दीपिका. नेक्स्ट समुद्र. Yes, ma'am. समुद्रे जलम अस्ति. वाह, अभी परफेक्ट किया आपने फ्रेम. अभी गंगा का भी एक बता दो मुझे. ओके. गंगायाम जलम अस्ति. अरे फैंटास्टिक. तो आपको समझा कि गंगा इज फेमिनाइन वर्ड. वेरी गुड दीपिका. Thank you, ma'am. Okay, so Deepika improved her answer. That's fantastic. Now last question, Sarovaram. Who is ready for the answer? Yes, Hitesh. सरोवरे जलम अस्ति. Correct. Perfect. Sarovare jalam asti. So in this manner, you have to write down all the sentences. So these types of activities will be there for your exam, and of course, one sentence will carry 1 mark. So अगर perfect sentence होगा without spelling mistake, then you will score 1 mark, full 1 mark. Okay, so here we have come to an end of lesson 8.2. Now quickly we're going to start with the lesson 8.3. So in 8.1 we have seen relations, and that is षष्ठी विभक्ति, जिसमें हम यूज करते थे या फिर यहाँ यूज करते थे. In 8.2 we have seen we have to use either मात्रा और याम फेमिनाइन. Now again 8.3 में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होने ही वाले हैं. मैस्कुलाइन एंड न्यूटर के लिए आपको सेम रहेगा, एंड फेमिनाइन जेंडर के लिए अलग रहेगा. तो अभी द टाइटल ऑफ द लेसन इज सहायकाः. सहायक मीन्स हेल्पर्स. तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स, इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिनोट करेंगे संस्कृत में, वो सीखने वाले हैं. फॉर जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे है सह सुधाखंडेन लिखति. सह मीन्स ही, सुधाखंडेन मीन्स विथ चॉक, एंड लिखति मीन्स राइट्स. सो ही राइट्स विथ चॉक. सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है? चॉक. चॉक जो है वो उसको हेल्प कर रहा है. Am I audible, students? राइटिंग का एक्शन कंप्लीट करने के लिए ये जो वर्ड है सुधाखंडेन, ये उसको हेल्प कर रहा है. तो एक्चुअल वर्ड वो सुधाखंड. ओके, वर्ड इज सुधाखंड. सुधाखंड मीन्स चॉक. तो क्या हुआ अभी यहाँ पे प्रोसेस, सुधाखंड ये जो वर्ड था, इसके बाद मुझे ऐसे बोलना था कि विथ चॉक. ही इज राइटिंग विथ चॉक. तो विथ या बाय ऐसे जब मीनिंग होता है, देन वी हैव टू ऐड मात्रा एंड न. दैट मीन्स ए न फॉर मैस्कुलाइन एंड न्यूटर जेंडर. सुधाखंडे न लिखती. सुधाखंड ये मैस्कुलाइन वर्ड था, इसीलिए मैंने ए न ऐड किया, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया बाय और विथ चॉक. ओके, yes Atharva, correct. Here we are using tritiya vibhakti like devena. Now next we'll understand next some sentences given. Aham charenena tadayami. Tadayami means kicking. I'm kicking a ball with leg. So by leg or with leg. So इसलिए charanena. Again you can observe a न add हुआ है ending में. अहम चमसेन खादामी. मैं खाने की जो एक्शन कंप्लीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम यूजिंग spoon, and इसीलिए spoon is my helping word, so I have used एन. चमसेन, चमसः चमसेन, चमसः चमसेन, सुधाखंडः सुधाखंडेन, देन चरणः चरणेन, एंड वैसे ही हस्तः हस्तेन, सा हस्तेन वादयति. वो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है, बजा रही है विद द हेल्प ऑफ हैंड, इसीलिए हस्तेन. हस्त इज इंस्ट्रूमेंट फॉर हर. Then next we'll move ahead. Now you have to answer for word. Okay, यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है. Sometimes while adding this एन, it also becomes एन. कैसे? ये जो एन है वो कभी कभी एण ऐसे भी हो जाता है, बाण वाला न. तो अभी बाण वाला न कब होगा? तो ऐसे वर्ड्स आप देख सकते हो, नेत्रेण, शस्त्रेण. अभी एक शस्त्रेण, ये एक वर्ड ले लेते हैं. ओके, शस्त्रेण. अभी इसमें ए नहीं ऐड हुआ है, बट आप देख सकते हो बाण वाला न है. नो चेंजेस टू न. ये क्यों होता है? तो हमने देव के टेबल के टाइम देखा था कि सम वर्ड्स जो होते हैं उसमें रू र श आता है. क्या आता है? रू, ऋषि वाला रू,
प्लीज नोट इट डाउन, जो भी मैं बोल रही हूँ वो नोट्स प्लीज नोटबुक में लिखना। रू र श, ओके, ये लेटर्स अगर कोई भी वर्ड्स में दिखे एंड उसके बाद अगर स्वर क वर्ग, क वर्ग मीन्स क वर्ग के कोई क वर्ग का कोई भी कॉन्सोनेंट, क ख ग घ ङ, एंड प वर्ग, any consonant of p varga is there, then no changes to no. I'm repeating it again, please quickly write down in your notebook. If we find ru or r or sh in a word, if we find ru or r or sh in word and it is followed by swar, and it is followed by swar और क वर्ग, क ख ग घ ङ, इसमें से कोई भी एक लेटर उसके बाद आ गया, और प वर्ग, then no changes to no, then no changes to no. Last time I'm repeating it. If in a word we find ru और र और श, सब एक साथ नहीं आएंगे, कभी रू दिखेगा, कभी र दिखेगा, कभी श दिखेगा वर्ड में। ऐसे लेटर्स अगर कोई भी वर्ड में हमें दिखे तो चेक करना है, अगर उसके बाद स्वर आया देन न का न बना दो। स्वर नहीं है बट उसके बाद सपोज क वर्ग का कोई व्यंजन आया, क ख ग घ ङ, देन उसको भी न चेंजेस टू न का रूल अप्लाई करना है। एंड अगर ये रू र श के बाद कभी प वर्ग का व्यंजन भी आया, प प फ ब भ म, देन ऑल्सो यू हैव टू चेंज न टू न व्हाइल एडिंग दिस एंडिंग्स। चलो तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं। पहला शब्द दिया हुआ है दंतकूर्च, दिख रहा है सबको, दंतकूर्च, ओके। अभी ये दंतकूर्च जो है, कूर्च जब मैं प्रोनाउंस करती हूँ वो साउंड र का साउंड सुनाई दे रहा है सबको, यस और नो? कूर्च में इज देयर र प्रेजेंट? यस करेक्ट, र इज प्रेजेंट। चलो र आ गया मतलब अपना रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी वी हैव टू चेक र के बाद क्या आ रहा है, र के बाद स्वर आ रहा है क्या? नहीं। र के बाद तो क्या दिख रहा है हमें? च, कुर्च, कुर्च। र के बाद आई एम प्रोनाउंसिंग च। अभी च जो है वो क वर्ग में आता है क्या? क ख ग घ ङ नहीं आता है। प वर्ग में आता है? प फ ब भ म नहीं आता है। तो हम लोग सिंपली वहां पे क्या लिख देंगे? दंतकुर्चेन। ओके, नाउ नेक्स्ट चरण, चरणेन, वो हमने यहाँ पे देखा। मार्जकः मार्जकेन, दन्तः दन्तेन, कर्णः कर्णेन, स्यूतः स्यूतेन, दीपः दीपेन, संगणकः संगणकेन। ओके, अभी कहाँ पे हो रहा है ये? तो नेत्रम नेत्रेण। न्यूटर जेंडर में भी देखो, अगेन हमें ये म को डिलीट करना है एंड वी हैव टू ऐड एण। नेत्रम नेत्रेण, शस्त्रम शस्त्रेण, ऐसे जो वर्ड्स है, वस्त्रम वस्त्रेण, यहाँ पे त्र जो है त्र, उसमें र मिक्स है, त प्लस र, एंड उसके बाद मात्रा आ रहा है ए, वस्त्रेण, इसीलिए वस्त्रेण, शस्त्रेण, नेत्रेण, ये सब में नो चेंजेस टू न हो रहा है। ओके, सो सिंपल यहाँ पे नोट कर लो कि हमें मैस्कुलिन जेंडर के लिए एन ऐड करना है एंड न्यूटर जेंडर के लिए भी एन ऐड करना है। समटाइम्स इट चेंजेस टू न। चलो आगे चलते, लास्ट पार्ट दैट इज फेमिनाइन जेंडर। मापिकया, मतलब मापी का वर्ड था, बस उसके बाद या ऐड कर दिया। माला वर्ड होगा तो माला या नहीं, पहले मा ल या, ये ल का एक जो खाना है या फिर जो आकार है वो निकाल देना एंड देन ऐड या। माल या, मापिका मापिकया, माला मालया, सारिका सारिकया, चटका चटकया। ओके, आर यू गेटिंग मी? तो अभी मीनिंग देखते हैं जरा। सा मापिका आलिखती, सॉरी, सा मापिकया आलिखती, आलिखती मीन्स ड्रॉइंग समथिंग, सो शी इज ड्रॉइंग विथ स्केल और रूलर। देन बालिका छुरिकया कर्तयति, छुरिका मीन्स नाइफ, सो कर्तयति कटिंग, शी इज कटिंग विथ द हेल्प ऑफ नाइफ, विथ द हेल्प ऑफ, इंस्ट्रूमेंट बन गया इसीलिए या। देन माता वेलन्या रोटिका करोति, अगेन यहाँ पे या ऐड हुआ है बट वर्ड जो था वेलन्नी
इट इज लाइक कूपी, वेलन्नी। ओके, इकारांत गर्ल्स के नाम जैसा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, या ही ऐड करना है, बट ये ई को हम रब करेंगे, सी, ई को रब कर दिया एंड देन न हाफ के साथ मैंने या जोड़ा, तो वेलन्या। तो वेलन्नी मतलब रोलर, चपाती बनाने का रोलर, बट जब वेलन्या होता है बाय रोलर, आई एम मेकिंग चपातीज विद द हेल्प ऑफ रोलर और बाय रोलर। चलो लास्ट है बालक कुप्या दुग्धम पिबती, बॉय जो है वो कुपी की मदद से बाय बॉटल दूध पी रहा है। ओके, so now anybody please tell me answer for all these words. रोटिका, 5 वर्ड्स का ये बता दो फॉर्म्स। पहले रोटिका से नलिका तक, हु इज रेडी टू आंसर? सेम लाइक माला, मालया, मापिका, मापिकया, वैसे ही आपको रोटिका पुस्तिका का आंसर बताना है। यस अथर्व? यस मैम। रोटिका रोटिकया, पुस्तिका पुस्तिकया, कपाटिका कपाटिकाया, पेटिका पेटिकाया, एंड ओके बस स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। नेक्स्ट, अथर्व ने ऑल आंसर्स करेक्ट दिए हैं, देन नेक्स्ट विल गिव चांस टू दीपिका। Yes, ma'am. दीपिका, नलिका टू गुलिका। Okay. नलिका, नलिकया, उपस्थिका, उपिस्तिका, उपिस्तिका, उपिस्तिकया. उत्पीठिका बेटा, What, ma'am? उत्पीठिका। Okay. उपिस्तिका, उपिस्तिकया, शर्करा, शक्कर. Ma'am, what is the answer? शर्करा, शर्करया, शर्करा, शर्करया, शर्करा. करेक्ट करेक्ट। गुलिका, गुलिकया. ओके वेरी गुड, Thank you, ma'am. ऑल आंसर्स आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट, पुत्तलिका से लेकर अंगुली तक। यस श्रेया? Yes, ma'am. Puttalikaya, Kuntikaya, Marjanya, Angulya. करेक्ट, ऑल करेक्ट। Yes. Thank you, ma'am. नेक्स्ट, पुनः पूरणी से लेकर घटी। यस वेदिका, पुनः पूरणी टू घटी। पुनः पूर्ण्या, अंगुन्या, अंकन्या, अंकन्या, कर्तर्या, घट्या. Ma'am, till where I have to tell? नहीं Hello. नहीं, ओवर हो गया ना। हाँ. हाँ, घटी इज द लास्ट वर्ड। Okay. Okay Vedika, all the answers are correct. Nice. So students, in this manner we have to use this tritiya vibhakti for masculine as well as feminine. For feminine ya, and for masculine and neuter ena sometimes changes to ena. Now next we have some questions, so we'll discuss it. Okay, by the way यहाँ पे कुछ new words है, उसका meaning बता देती हूँ। रोटिका is roti, chapati, then pustika is notebook, kapatika is cupboard, petika is box, then nalika is pipe, utpithika is table, sharkara is sugar, gulika is tablet, medicine, then puttalika is a statue, mannequin, kunchika means key, lock and key में से key, मार्जनी मीन्स झाड़ू जो होता है वो मार्जनी,
देन नेक्स्ट है अंगुली फिंगर, पुनः पूरणी रिफिल, अंकनी you know that is pencil, करतरी is scissors and घटी is watch. Okay, so is there any doubt? न्यू वर्ड्स जो है गुलिका, पुत्तलिका, कुंचिका, वो याद रखना. गुलिका टैबलेट, पुत्तलिका मैनिक्विन, कुंचिका की, तो आप यूज कर सकते हो अभी while framing the sentences. ओके, पहला क्वेश्चन है वाक्यानि पूरयत, कंप्लीट द सेंटेंस. महिला द्रोणी जलम आनयति, महिला पानी लेकर आ रही है. आनयति मीन्स ब्रिंग्स, so she brings water by bucket. So who will tell me the answer to it? Yes, Shreya. Yes, ma'am. Mahila dronaya jalam anayati. Very good. And what is the second answer? बालकः चमसः खादति. Balakah chamasen khadati. Very good, Shreya. So all the answers are correct by Shreya. Now third and fourth question, who will give answer? Yes, Atharva. Yes, ma'am. सा हस्तेन रोटिकां खादति. Very good. Ma'am, screen is, yes, ma'am. Now I can see. सः दंडेन ताडयति. Okay, can you guess the meaning of सह दंडेन ताडयति? Yes, ma'am. He is hitting with a stick. Wow, that's fantastic. Great, Atharva. Again, students, note it down. Danda is new word for you and Atharva guessed it correctly. Danda means stick. ताड़यामी हमने यहाँ पे ही देखा था. ताड़यति, ताड़यामी, both are same. So सह ताड़यति means he is heating with stick. So with stick or by stick के लिए the word is dandena. Very good. Now last two questions. Yes, Deepika. Yes, ma'am. सः जल मैम जलेने Either you will, हाँ बराबर. Either you will add a न or या. ओके. सः जलेन मुखः प्रक्षालयति. Very good. प्रक्षालयति. सः कुचिकया तालम उद्घाटयामि. उद्घाटयति. हाँ, उद्घाटयामि. उद्घाटयामि. Okay, very good. Thank you, Deepika. Correct answers. वेलकम मैम. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जलम मुखम प्रक्षालयति मतलब वो अपना फेस जो है वो वॉश कर रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसीलिए अगेन हमने जलेन यूज किया. एंड अहम मीन्स आई एम, कुंचिकया मीन्स विद द हेल्प ऑफ की, तालम उद्घाटयामि मीन्स ओपनिंग द लॉक. आई एम ओपनिंग लॉक विद द हेल्प ऑफ की. सो विद द हेल्प ऑफ की, इसीलिए की के लिए हमने कुंचिकया ये तृतीया विभक्ति यूज किया. ओके, so here we have come to an end of this chapter 8.3 and still there is one use of this या and a ये जो वर्ड्स है इसका और एक यूज होता है कहाँ पे, तो सह एंड विना ऐसे जब हमें सेंटेंस फ्रेम करना है. लाइक सह मीन्स विथ एंड विना मीन्स विदाउट, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है. तो यहाँ पे अभी देखो मंदारः निनादेन सह खेलति, मंदार इज प्लेइंग विथ निनाद. तो जब हमें ये सह ऐड करना है ना, मैं किसी और के साथ कोई एक्शन शेयर कर रहा हूँ या एक ही एक्शन हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस एन. इफ इट इज बॉय, इफ इट इज गर्ल, जैसे आप देख सकते हो कि ये गर्ल है, छात्रा है, तो इसीलिए शिक्षिका छात्र या सह श्लोकम पठति. शिक्षिका जो है वो गर्ल स्टूडेंट के साथ श्लोक का पठन कर रही है, इसीलिए शिक्षिका छात्र या सह श्लोकम पठति. ओके, तो अगेन यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो नीला एंड मोहिनी ऐसे दो गर्ल्स है यहाँ पे. नीला मोहिन्या सह पुस्तकम पठति, मोहिनी बिकम्स मोहिन्या बिकॉज सह आ गया.
सेम फॉर विना, मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति, पानी के बिना फिश नहीं जी सकते। बिना, बिना, बिना जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही बिना मीन्स विदाउट, विदाउट वाटर फिश कैन नॉट लिव। तो वैसे ही यहाँ पे जलेन, जिसके बिना नहीं जी सकते, उसकी यहाँ पे तृतीया विभक्ति एन ऐड करना है। वैसे ही बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति, बॉय छोटा बच्चा जो है वो लाडू के बिना कुछ भी नहीं खाता है। एंड वृद्धः उपनेत्रेण विना न पठति, दादाजी जो है वो विदाउट चश्मा कुछ भी पढ़ नहीं सकते, इसीलिए उपनेत्रेण विना। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो त्र आ गया, इसीलिए न का बन गया है न। ओके, so here we have come to an end of this lesson finally of 8.3, where we have only learned we have to use either ena or ya for feminine, ena for masculine and neuter. Okay, so we'll stop here and we'll continue with this lesson 8.45 etc. in the next lecture. Okay, you will get a reminder for next lecture soon. So till then, Punarmilamah, and thank you so much everyone.